Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on that mobile. Hi guys, this is Bulkis. Welcome to my show. जिसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है because again I'm back with another episode and you know इस बार बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी मेरे साथ आई हैं and believe me आपको मजा आ जाएगा उनसे बात करके and उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा बिकॉज ज़्यादातर तो वही बताएंगे बट थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा बिकॉज यू नो एक जर्नी हर इंसान फॉलो करता है बट यू नो अप्स एंड डाउन्स आते हैं बट इनकी जर्नी में इतने अप्स इतने डाउन्स आए कि अब ये ना ये अब यू नो अब ये एक तरह के बैटमैन बन चुके हैं या बैटमैन सुपरमैन जितने मैन है ना मार्वल यूनिवर्स जितना है वो सारा जितना पावर है वो इनके पास आ चुका है बिकॉज यार आसान नहीं होता बीइंग यू नो मोटिवेशनल स्पीकर बीइंग एक ऐसे पर्सनालिटी जो यू नो जो कैंसर सर्वाइवर है 2 times एंड एक हाथ नहीं है जस्ट बिकॉज एम्पलीट्यूड है उसकी वजह से सारी जो सुपर पावर है वो इनके पास ही है आजकल सो प्लीज वेलकम Rachit Kulshrestha. Hi Rachit, how are you? Hey, I'm good, very well. How are you doing? I'm good. And thank you for such a lovely introduction. So I thought कि ये कम था, इससे ज़्यादा भी कर सकता था because आप you're going to say more about yourself. आप खुद बताएं, मेरे मुंह से अच्छा लगेगा ज़्यादा बताना. So Rachit, आपको शो का concept पता है what I do and you heard also, I guess. Yes, I've seen other gentlemen and ladies who've been on this show and I've seen the podcast and everything. Nice. So मैं आपसे यहाँ पे 4 या 5 questions करूँगा. Please allow करें. Okay, yeah, sure. Please go ahead. Okay, Rachit, मेरा पहले आपसे question है कि how was your life these last 2 years because of COVID, because of you know बहुत सारी चीजें challenges रहे हैं आपके साथ because आप एक पेशेंट बिकॉज आप एक कैंसर सर्वाइवर भी रह चुके हैं तो आपको बहुत ज्यादा अपने आप को यू नो प्रोटेक्ट करके रखना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस कोविड कैसा रहा लाइक ऑल दीज इयर्स लाइक ऑल दीज 2 years So right from the time when COVID started and when the lockdown started, by like in middle within 6 months we lost our job. I'm actually from the animation and VFX industry. Same here. And we lost our job. And that's nice to know. And so I lost my job, but honestly I didn't let it get the better of me. I always knew there will be a lot of other opportunities. Maybe this is like a testing time or something. To be very honest, the whole pandemic lockdown till now has been perfectly fine and I've been very happy and filled with joy because I got to learn a lot of things. We all as humans had to retrospect and we got that time, you know, we were so busy with that circus, you know, wo routine, office, and you know, we got that little step, like little time, like that was like a break, like, you know, see where you're going and how things are. So I got a time to do a lot of self work and a lot of this thing. Luckily where I'm based, geographically speaking, तो मेरे लिए बहुत इजी रहा है. मैं बहुत खुश रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मौका मिला है मेरे अपने आप पे सेल्फ वर्क करने का. मैं अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा था वेयर आई कुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं अपने बारे में कुछ सीख सकता था और मैं जहाँ बेस्ड हूँ मैं इतना लकी था कि आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं लॉकडाउन में भी बाहर निकल सकता था और मैं साइकिलिंग के लिए एटलीस्ट जाता था क्योंकि मैं एकदम उंदरी में हूँ जो एक थोड़ा आउटस्कर्ट्स है ऑफ पूना. तो मैं साइकिलिंग के लिए बाहर शायद बहुत अच्छी पहाड़ियां हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं इधर जो बहुत सारी चीजें उगाते हैं इधर मेरे घर के पास. मूली से लेके गवार, भिंडी, आपको फ्रेश खाने को मिलेगी इधर, ताजा एकदम ऑर्गेनिक. मतलब उखाड़ो और खा लो गाजर इस टाइप की वैसा. तो बहुत अच्छा समय रहा है मेरे लिए. लकीली मेरे को जॉब भी मिल गया है एंड थिंग्स आर बैक. And actually it was a pandemic before pandemic. मैं 5 साल से independently रह रहा हूँ अपने आप. तो मुझे तो आदत थी ये sort of a thing of staying by myself and running my show. तो pandemic में it wasn't something new for me or a surprise besides the job.
Okay. मैं अपने आप मैनेज कर सकता था, and it touching God's word, things are going very good right now. Nice. तो मतलब तुमने मतलब अगर मैं इसको पूरा समराइज करूँ तो तुम्हारा पैंडेमिक उतना नहीं वैसा नहीं गया जैसे ऑल ओवर गया, मतलब डरावना था, because I live in Delhi, so Delhi was very bad. Like second wave तो बहुत बुरी थी यहाँ पे. First wave was झेल गए, वो फील भी नहीं हुई, but second wave बहुत बुरी थी. Okay, so let's move to next question. यार आप 2 टाइम कैंसर सर्वाइवर रह चुके हो, आपने कैंसर को हराया है. How was this life changing experience to you? मतलब ये कैसे एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका 2 बार कैंसर के साथ? बिकॉज हम अक्सर पढ़ते हैं कि कितना डिफिकल्ट रहता है. लाइक आपके लिए कैसा रहा? तो मैं अगर ऑनेस्टली मैं अपना एक्सपीरियंस मेरा अनुभव शेयर करूं इसके ऊपर, तो मैं जब मैं 6 साल का था तो मुझे कैंसर हुआ था, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा. तो मेरा लेफ्ट हैंड फ्रॉम कॉलर बोन एम्पुटेट हो गया था कंप्लीटली. मैंने रियलाइज किया कि मैं एंड आई केम फ्रॉम आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो इतना पैसा नहीं था कि खर्च करने की फॉर मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग एंड ऑल दोस अदर थिंग. बट आई एम मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे हीलिंग, मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है. उन्होंने मुझे सिखाया कि हाउ यू मेक पीस, आप एक शांति बनाओ जो भी आपके सिचुएशन है, मुद्दा है. मैं बहुत अपसेट था पहले, फ्रैंकली स्पीकिंग. मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत डिस्टर्ब था, और मैं बहुत छोटा था, तो मेरी यादें उसके बारे में थोड़ी सी कमजोर, क्योंकि मैं 6 साल का था जब ये हुआ था. तो पर मैं बहुत ही सेंसिटिव था इस मुद्दे को लेके. मुझे अगर मुझे कोई एक बच्चा भी पूछ ले छोटा सा कि तुम्हारे हाथ को क्या है, तो मैं पूरा वहां पे पूरा ऐसा लाइक बिखर जाता था. आई वुड बी फ्रैगमेंटेड. पर मैंने फिर लकीली मैं लाइक आई मेंशन कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे इतने अच्छे लोग मिले हैं जिन्हें मुझे बहुत कुछ सिखाया. मैंने बुक पढ़ी है एक लुई से की, यू कैन हील योर लाइफ. ये बुक ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है. मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूँ सब लोगों को कि ये बुक पढ़ें. ये बुक बहुत, इस किताब में कुछ जादू है. अब मैं इतना यूज्ड टू हो गया हूँ. आज मैं 35 इयर्स का हूँ. ये जब मैं 6 साल का हुआ था, मैं आई थिंक बाय द टाइम आई रीच्ड मैं 18-19 का हो गया था. मैं बहुत हंसी और मजाक उड़ाता था मेरे डिसेबिलिटी पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप अगर अपनी डिसेबिलिटी पे हंसते हो तो आपका जो वो दुख है, वो दर्द, वो पिघल जाता है, वो मिट जाता है. ऐसा मेरा सोच रहा है. तो अब मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत समय लगा समझने में कि लोगों में एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता होती है, सब में होती है. किसी को मेरे को समझ में आया कि लोगों को मेरे को देख के एक क्यूरियोसिटी होती कि हाँ भाई तेरा हाथ कहाँ है, क्या हो गया तेरे हाथ को. तो मैं अब उस पे ऐसा बोलता हूँ कि कभी मेरे शार्क ने हाथ खा लिया, तो मैं ऐसा थोड़ा ट्राई टू बी फनी ऑन दिस एंड ट्राई टू मेरे को थोड़ा टाइमिंग्स पे वर्क करना पड़ेगा शायद. एंड उसके बाद जब मैं 27 साल का था, जब मेरा दूसरा कैंसर हुआ, तो मेरा वो राइट लेग में हुआ. तो मेरा फुट ड्रॉप है मेरे राइट लेग पे. तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था एक्चुअली. मैं फ्रैंकली कि मेरा टांग ना जाए, वो मेरे दिल में वो एक डर सा बैठा हुआ था. पर मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरा इतना सब होने के बाद भी आई डोंट नो द डिवाइन पावर या भगवान या जो भी लोग कहते हैं उसे, उन्हें बहुत हेल्प करी है. उसके बाद ही मैंने तुरंत जब मेरे को दूसरा कैंसर होता, आई वाज मोर मैच्योर्ड. मेरे में अंडरस्टैंडिंग बहुत थी, तो मेरे को इतना उसका हिट नहीं हुआ जितना मेरे को जब मैं वो एक छोटा 6 साल का बच्चा था जब वो हिट हुआ रहेगा. तो इम्पैक्ट मेरा कम था उस पे. तो मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, मुझे समय बर्बाद करना नहीं था. मैंने मेरी साइकिल निकाली और मैंने मेरा रूटीन लाइफ और सब स्टार्ट किया. और कैसा होता है सर कि सर्जरी में ना, कैंसर में ना सर्जरी का प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि वो एक 24 घंटे में वो मुद्दा खत्म हो जाता है. पर जो सबसे कठिन चीज रहती है कैंसर के बाद, वो है कीमो. क्योंकि कीमो ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था. क्योंकि मुझे याद है कि मैं अगर आप मुझे टमाटर, वड़ा पाव, पिज्जा आप मुझे खिला दो और मैं आपको कुछ फर्क नहीं बता पाऊंगा कि उसका टेस्ट
टेस्ट का आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टेस्ट बर्ड सारे किल हो जाते हैं। पर अब इतना टाइम हो गया है, एंड वो कहते हैं कि समय ना सब चीज हील कर देता है, टाइम हील्स एवरीथिंग। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ा सा सेल्फ वर्क किया। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, हेल्प किया है, उनके लिए मैं बहुत शुक्रिया मानता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज। और मैं आगे बढ़ा और उसके बाद इतनी सारी खूबसूरत चीजें हुई हैं, इतनी सक्सेस हासिल हुई है, और अभी भी बहुत सारी चीजें करना बाकी है कि समय बहुत सुंदर हो गया है सर, जिंदगी बहुत सुंदर है सर। I know and hats off to you bro, आप इतना कर पाए और अपने आप को इतना यहाँ तक ले पाए, hats off to you। आसान नहीं होता। पेरेंट्स के लिए कैसा रहा? लाइक आई नो उनके लिए बहुत पेनफुल रहा होगा ये सारा जर्नी आपके साथ। लाइक हाउ वाज दे, मतलब लाइक आप सहारा देते थे उनको या लाइक कैसे आप उनको करते थे? हाँ, so सहारा अब it's become like a thing for like a parents and son bonding। तो मेरे एटलीस्ट मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी सॉरी फील, और वो सबको जाके बोलते थे इसके लिए कभी सॉरी मत फील करना। वो चाहते थे कि मुझे एकदम इक्वल ट्रीटमेंट मिले। मैं फिलहाल एंड अब मैं इंडिपेंडेंटली रहता हूँ, तो मैं उनको बुलाता हूँ घर पे, कम होम फॉर डिनर, कम होम वॉच अ मूवी विथ मी। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है ये, जिसमें बहुत सारी चीज, और कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होती है। वो धीरे धीरे टाइम स्पेंड करके उसको ना एक बहुत बेहतरीन बनाना पड़ता है। तो उस पे दोनों ने काम किया, मतलब मैंने भी काम किया, मेरे माँ बाप ने भी काम किया है। आई एम श्योर हाँ, मेरे माँ बाप के लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि for their son to go through so much of things must have definitely not been easy for them as well। So it's been a rough road, पर हमने सब हमेशा खुश रहना और आगे बढ़ना सीखा है, इसलिए हम इधर हैं जिधर हैं सर। ओके, ये क्वेश्चन नहीं था बट मैं फिर भी पूछना चाहूंगा, क्या लाइक आपके फ्रेंड्स रहे, उनका सपोर्ट रहा फ्रेंड्स का? बिकॉज ऐसा क्या होता है कि हम ज्यादा अपनी लाइफ में मेडिकल जब चीजों में बिजी हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स वगैरह थोड़ा सा कभी कभार होता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो आपको सपोर्ट करते हैं इमेंसली, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको थोड़ा साइडलाइन करना शुरू करते थे, थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कैसा रहा उनका? लाइक फ्रेंड्स रहे आपके या हाँ, sorry to interrupt you। Sure, go on। हाँ सर मिक्स बकेट रही है। कुछ फ्रेंड्स हैं कि मैं अभी भी अगर उनको 3-4 बजे रात को फोन कर दूं तो वो एक फोन कॉल पे इधर आ जाएंगे। मेरा गलती से कभी मिस कॉल भी लग जाता है तो वो कॉल बैक करते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं, कुछ डर को फिक्र हो जाती है। हाँ, और कुछ फ्रेंड्स रहे हैं जो थोड़ा सा ऐसा अवॉइड करते हैं। तो मैंने इट डिड अपसेट मी फॉर अ व्हाइल, जब वो उस जिस टाइम पे वो हालात चल रहे थे, पर मैंने फिर आई मेड पीस विद इट एंड बस मैं आगे बढ़ा हूँ। और यू कीप फिल्टरिंग, यू मेक न्यू फ्रेंड्स, यू मेक दिस थिंग and feeling sad is okay, but don't let it be forever and be stuck up on it। वो एक चीज नहीं करनी चाहिए। So basically you accept it the way you are। Yeah, absolutely। Nice। Okay, मैं आपसे अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यार आप एक इट्स काइंड ऑफ यू आर इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है? आप एक इन्फ्लुएंसर कर रहे हो दुनिया को, लोगों को अपने तरीके से। You are not social media star, you're not like that, but you are influencing with your work, with your hard work, with your dedication and everything। Like ये कैसे आपको फील हुआ यार? ठीक है, I'm amplitude, so I should start cycling। मतलब ये कैसे आपको आइडिया आया कि यार मुझे साइकिलिंग करनी चाहिए? ये आपके लाइक बिकॉज डिफिकल्ट होता है, दैट कि दोनों हाथों से आपको साइकिल पकड़ के करना है, एंड यू आर मैनेजिंग साइकिल लाइक विद वन हैंड, और कैसे कोई हेल्प करता है आपकी? आप कैसे उसको मैनेज करते हो इतनी बड़ी साइकिल चलाने? मुझसे जब मैं बहुत छोटा था, मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने एक सॉर्ट ऑफ एक ब्लॉकेज और एक बाउंड्री सेट कर दी अपने दिमाग में कि मेरा एक हाथ नहीं है, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा लाइफ में। और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी लाइफ में कि मैंने ये एक, और मैं भी बहुत छोटा था, तो आई कांट हुआ जो हुआ। एंड इस कारण मैंने क्या किया कि आई पुट अ वेरी बिग ब्लॉकेज अक्रॉस मी। मैंने एक बाउंड्री बना दी और मैं उस बाउंड्री के अंदर ही रह गया, और मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में और मैं कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि
मैंने अनुभव किया कि सब चीज एक्चुअली 200 पर्सपेक्टिव से बनी है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो। तो वो क्या हो गया कि इसमें मेरे पिताजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेरे पिताजी ने, मुझे याद है कि उनका बहुत डिफिकल्ट जॉब था, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, पर वो देखते थे कि मैं, सब बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उन्हें, मुझे याद है कि हम वी केम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड, तो वो मेरे को याद है कि वो एक साइकिल एक्चुअली रेंट पे लाते थे मेरे लिए, और मेरे पेरेंट्स के घर के गेट के बाहर एक ऐसा छोटा सा चढ़ान है, तो मुझे हर 2 मिनट मेरे को ऊपर गेट पे छोड़ते थे और मेरे को बोलते थे नीचे आ जा, और मेरे को साइकिल पकड़ लेते थे। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम, और क्या होता है कि हैंडलिंग द साइकिल विद एक हाथ से उस टाइम पे बहुत कठिन था। मैं बहुत गिरा हूँ, मैं बहुत ठुकता हूँ, और मैंने बहुत सारे इधर उधर गिर के, झाड़ू को गिर के, ठोक के, ये सब में मुझे फाइनली बहुत टाइम लगा वो बैलेंस करने में। तो एक बार जब उसकी आदत हो गई, फिर मैं साइकिलिंग स्कूल भी जाता था। मैं जब 8-9 स्टैंडर्ड में था, मैं साइकिलिंग स्कूल में जाता था, और मैं फिर उसके बाद मैंने फिर कभी मैंने वो ब्लॉकेज और वो मेंटल मैंने जो बना के रखे थे, मैंने वो निकाल दिए कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली ब्रोस। और मैंने ये नोटिस किया कि और उसके बाद मैंने 200 किलोमीटर साइकिलिंग की है, 300 किलोमीटर साइकिलिंग की है मैंने, मनाली टू खारदुंगला एक्सपेडिशन किया है मैंने, एक साउथ ट्रिप एक्सपेडिशन किया है। तो डिफिकल्ट रहा है, और बस वही थी कि एक शेयर विल थी बहुत। वो कहते हैं कि where there is a will there is a way, तो विल बहुत थी मेरे में कि कुछ करना है, तो उसके कारण डिफिकल्टी नहीं हुई लाइक इतनी हाइट पे चढ़ना, और कभी कभार पहाड़ों पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है, डिफिकल्टी नहीं हुई? जी सर, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जैसे ही रोहतांग पास के थोड़ा और आगे जाते हो, आई थिंक फ्रॉम विस्की नाला से, वहां पे प्लांट्स नहीं है बिल्कुल, तो ऑक्सीजन बहुत कम है, और आप अगर मुश्किल से 100 मीटर भी जस्ट चल के जाओगे तो आपकी सांस फूल जाती है लिटरली। मैं एग्जैचुरेट भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी उधर जा चुका है वो कनेक्ट करेगा इसके साथ। एंड पर वो वही है कि आपको हर 1 किलोमीटर में एक पानी का घूंट लेते जाना है। वो हमको एक प्रोटोकॉल सिखाया था, एक द वे टू ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस। एंड आई हैड वर्क, हम लोग ने बहुत सारी ट्रेनिंग की थी, एंड साइकिलिंग में बहुत जुनून था सर, वो करना और वो पैशन और वो जो खुशी मुझे देता है, आई थिंक उसके कारण ये सब बहुत पॉसिबल हुआ है, और बहुत सारे लोग का सपोर्ट और हेल्प की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। और मैं इतना खुशनसीब हूँ, मैं हर दिन सिर्फ ऑनेस्टली मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा मानता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी और हील किया है, सपोर्ट किया है मेंटली, फिजिकली। तो मैं भी समझता हूँ कि हर एक इंसान की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब मैं भी आई ऑल्सो वांट टू शेयर, एंड मैं हेल्प करना चाहता हूँ लोगों को, एंड आई फील कि मैं उनको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को हेल्प कर रहा हूँ। मैं जो भी किसी के लिए करता हूँ मैं एक्चुअली खुद के लिए करता हूँ। ऑनेस्टली मेरे को एक खुशी मिलती है और मुझे खुद सीखने को मिलता है कुछ नया चीज उसके कारण। तो मैं सबको मोटिवेट करना चाहूंगा कि आप प्लीज सबको हेल्प करें, एंड लेट्स हेल्प एंड बी वन एज इंडियन। एब्सोल्युटली सबको हेल्प करनी चाहिए, एंड बिना हेल्प के तो भाई एक सपोर्ट बेसिकली चाहिए होता है। मॉरल सपोर्ट भी इंसान का मिल जाए ना, बहुत होता है। ओके सो यार, आपको लोगों ने फोर्स नहीं किया कभी यार? यू आर नाउ इन लाइक यू आर नाउ, मतलब कभी लोग होते आते अबे यार तू तो गवर्नमेंट जॉब कर लेता है ना यार, तेरे पास तो कोटा है, तू तो ऐसी चीजें कर सकता है, तू क्या कर रहा है यहाँ पे क्रिएटिव इंडस्ट्री में, है ना? Why you want to join this kind of thing? तू अपने आप को स्ट्रगलिंग बना रहा है, जाना जो गवर्नमेंट जॉब कर। ऐसा बोलते नहीं थे? कभी किसी से आया नहीं कमेंट ऐसा? नहीं, बहुत आया सर, बहुत प्रेशर आया उसके लिए, बहुत कमेंट्स आए सब। मुझे यही टिपिकल आप जो बोल रहे हैं वैसे ही मुझे सब बोलते थे। और मेरा बचपन का सब I faced it ना, तभी तो मैं तुमको पूछ सकता हूँ कि यार ऐसी चीज को छोड़कर, ठीक है मैं मानता हूँ उस चीज में बहुत ज्यादा आपको सहारा है, आपकी सिक्योर है, बट एक कभी कभार मतलब ना अंदर से मन से भी आती है कि यार सही बोल रहा है बंदा, करना चाहिए या अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। कभी ऐसा हुआ? तो हाँ, कुछ कठिन समय थे कि मेरे को थोड़ा सा डाउट होने लगा था, कि मुझे थोड़ा सा सेल्फ डाउट होने लगा था कि मैं आई थिंक वो टाइम पे
21 या 22 साल का था जी, और जी. मुझे फिल्म से ज्यादा बड़ा पैशन नहीं था, मुझे मूवीज में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे डायरेक्टर बनना था. जी. तो एंड मेरे फ्रेंड मुझे मजाक में ऐसे बोलते थे कि तू पॉर्न डायरेक्टर बनेगा या ऐसा कुछ, ऐसे मजाक मजाक में ये सब. एंड थोड़ा आई थिंक इट वाज इंटेंशनली मजाक, नॉट मजाक, सीरियस, सब में वो एक सॉर्ट ऑफ अ डीमोटिवेशन आता था लोगों से. पर मैंने यही सीखा है लाइफ में और सबको मैं यही शेयर करना हूँ, लोग को जो बोलना है बोलने दो, आपको अपने आप में बिलीव करना है एंड आपको चेज करना है आपका ड्रीम. बहुत डिफिकल्ट रहा है ये सपना, बहुत ही मुश्किल, पर बहुत उसमें स्ट्रगल और हार्ड वर्क और एडवर्सिटी बहुत इन्वॉल्व है. बहुत कठिन समय रहा है कि फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग, पर मैंने बहुत ही आई स्टिल चेज दैट ड्रीम टिल लाइक आई डोंट गेट देयर. मेरे को लोगों ने कहा है कि मेरी डिटर्मिनेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, मैंने एक बार चीज ठान ली तो मैं करके रहता हूँ. तो इस कारण इस कारण से लगता है मुझे कि फाइनली मेरे को भी मेरा ब्रेक मिल गया बहुत कठिनाइयों के बाद. एंड आई एम ग्लैड कि मैंने वो गवर्नमेंट जॉब, और वो इट्स अ गुड थिंग इन अ वे कि इट मेक्स योर फ्यूचर वेरी स्टेबल एंड एवरीथिंग. पर एटलीस्ट मुझे अब वो रिग्रेट नहीं रहेगा जब मैं 70-80 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा कि हाँ यार मैंने ये किया नहीं था, मैंने कर दिया वो भी. तो बहुत खुश हूँ कि मेरे सपने पूरे हुए हैं, भले थोड़ा टाइम लगा है पर सपने सारे पूरे हुए हैं सर. एक्चुअली हर किसी की अपनी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं एंड हर किसी को कुछ ना कुछ अचीव करना है लाइफ में. आई एम नॉट सेइंग, ठीक है, अगेन इट्स वेरी गुड थिंग कि गवर्नमेंट जॉब किसी को अगर चाहिए, एंड देयर आर पीपल हु लव टू sit in exam and crack it और वो पढ़ ले, बहुत अच्छी बात है. बट कुछ अपना भी तो होता है ना कि हमने कुछ करना है, वो एक पहचान जिसमें मेरे को चाहिए, मेरे को वो अचीव करनी है. एक वो चीज जब आती है ना तब लगता है हाँ यार. बाद में जब आप अचीव कर लेते हैं ना तब लोग कहते हैं हाँ तू सही था, हम गलत थे. ओके, इट्स हैपनिंग विद मी राइट नाउ. मैं किसी को क्या बोलूं, मेरे पैसा होता है. तो चलो कोई बात नहीं, जो आपने चूज किया बहुत अच्छा किया. ओके, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यार, जैसे यू वर सेइंग कि आपने एक वॉल बना ली थी, मेंटल वॉल बना ली थी अपने आप पे. तो यार हाउ वाज योर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग दिस टफ टाइम जो आपने फेस किया अभी तक? एंड लास्ट में एनी मैसेज टू द सोसाइटी? जी, तो मैं 6 साल का था, हाथ चला गया, मैं बहुत छोटा था, अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्वियसली बहुत कम रहती है एक नादान बच्चे में. मैं बहुत चिढ़ा हुआ रहता था, मैं बहुत गुस्से में रहता था, मैं बहुत इरिटेटेड रहता था. मुझे कोई अगर हाथ के बारे में पूछता था तो मैं बहुत गुस्से में बहुत रूडली रिप्लाई करता था, वेरी ऑनेस्टली. मैं आई थिंक 13 साल और उसके भी बिलो था मैं. तो मैं बहुत रूड रहता था, मैं बहुत ये ऑफेंस मेरा ये था. पर वही है कि मुझे किसी ने ये किताब दी, मुझे सिखाया कि तुम इसको इतना सीरियसली मत लो, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके साथ एक शांति बनानी चाहिए. जो हो गया वो हो गया है. मैं अभी फटे हुए दूध पे रोके कुछ मिलने नहीं वाला है. इसके साथ आगे छोड़ के, इसको पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है. और मैंने इंस्टेंटली ये नहीं किया, मुझे भी थोड़ा समय लगा इसको करने में. पर एक बार जब ये हो गया मेरे से, और जब मैं फिर बस गाड़ी ट्रेन की तरह आगे बढ़ती गई. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को एक मैसेज कि मैं सबको एक ही होमवर्क देता हूँ. मैं जब भी मेरे मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं या जब भी मैं सबको बोलता हूँ, आप 1 घंटा आपके मोबाइल फोन को ऑफ करके, कभी भी पूरे 24 घंटे में आप 1 घंटा अपने साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको भूल जाओ 1 घंटे के लिए, और अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को रियलाइज करो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. क्योंकि अगर आपके कुछ इश्यूज रहेंगे, कभी मेरे भी बहुत इश्यूज हैं जो मुझे रियलाइज नहीं होते हैं या हाईलाइट नहीं होते हैं, मेरे अवेयरनेस में नहीं आते हैं, वो मेरे को ध्यान में नहीं आते हैं. तो आप अपने इश्यू को रियलाइज करें और उस पर वर्क करें, और आपको बहुत हेल्प मिल सकती है अगर आप अपने आप को हेल्प करेंगे. तो मैं बस यही बोलूंगा कि स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ एंड फिक्स योरसेल्फ. प्रॉब्लम्स हैं आप प्लीज, और अब तो मैं इतना हम फुलकित, हम एक ही एज के हैं. अब कितनी हेल्प और सपोर्ट जो पीडब्ल्यूडी को मिल रही है वो 10 साल पहले नहीं थी, इतनी हेल्प और सपोर्ट नहीं थी. तो अब बहुत सपोर्ट है, हेल्प है. तो आपको बस अपने इशू के साथ शांति बनानी है. उसको है डिफिकल्ट, मैं मानता हूँ इतना इजी नहीं है, पर बस हमको आगे बढ़ना है बस. और जिंदगी में पॉजिटिव रहना है, और लाइफ में खुशियां और लाइट बांटनी है सब जगह. स्प्रेड लाइट, स्प्रेड पॉजिटिविटी. तो आपको मैसेज, आई थिंक जो वहाँ सुन रहे हैं, जो मेरी ऑडियंस है, उनको मैसेज मिल गया होगा. लाइक
इससे ब्यूटीफुल मैसेज नहीं आई थिंक कोई दे सकता, you know, just spread happiness and positivity. So Rachit, thank you so much for coming, you know, Thank you. and thank you so much for sharing such a lovely and wonderful thoughts of yours. So how you are like कैसा लग रहा है आपको, मतलब how is it? बहुत अच्छा लग रहा है सर. अच्छा लगता है to share this kind of an experience. आपने कुछ बहुत ही ऐसे सवाल मुझे इतने सालों में कभी किसी ने पूछे नहीं, और मैं चाहता था कोई तो मुझे वो सवाल पूछे और मैं कभी किसी को बोल नहीं सकता कि मेरे को ये पूछो, पता है, तो आपने वो एकदम से पूछे तो बहुत बहुत अच्छा लगा. और अभी बहुत सारे अभी बाहर निकलूंगा, साइकिलिंग करने जाऊंगा, क्योंकि अभी बस बारिश के कुछ ही दिन चालू हो जाएगी बारिश, तो फिर इतना बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड आई एम गोइंग टू रॉक माय लाइफ एंड आई विश एंड प्रे दैट एवरीवन रॉक योर लाइफ. Yo, right. I wish you all the best for your future endeavor. आप जो चाहें आपको मिल जाए, and keep bouncing and keep rocking. Thank you so much for that. मेरी शुभकामनाएं. थैंक यू. Okay, so guys, ये था मेरा आज का शो. आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना. And yeah, आप रचित को भी फॉलो कर सकते हैं. आप अगर उनसे पूछना चाहते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आपको भी अगर साइकिलिंग का शौक है, आपको भी ऐसा पागलपन है, तो रचित इज हियर. जस्ट DM him. Instagram ID आपकी है कोई रचित? आप बता दें. Yes, Facebook, Instagram में सब में हूँ मैं. आप I think it's रचित कुलश्रेष्ठा. पूरा नाम तो ये है. Yes, correct. और मैं बस एक और, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक और मैसेज शेयर करना चाहता हूँ. मैं अगर कोई भी PWD या एबल्ड बॉडी जॉब ढूंढ रही है, मैं कुछ कॉस्ट नहीं ले रहा हूँ. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प. आई कैन ट्राई एंड एटलीस्ट कनेक्ट यू एंड ब्रिज दैट गैप विद अ रिक्रूटर एंड हेल्प यू विद अ जॉब. एंड स्पेशली PWDs, अगर आपको कोई भी जॉब की जरूरत है तो आप प्लीज मेरे साथ टच में आ जाएं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एटलीस्ट कनेक्ट द डॉट्स. नाइस. सो इससे बेटर और कोई तरीका नहीं हो सकता, Okay, so thank you and once again Rachit for this. And yes, so guys, क्या बोलना है, ध्यान रखना है और दुआ में याद रखना है. Bye bye. Please take care.